Once again, welcome you to another video of Biology, Class 12th, Biotechnology Principle and Process. Now we take another topic, Tools of Recombinant DNA Technology. When we want to construct a recombinant DNA, we need following tools, and that tool used to create a recombinant DNA. So these are biological tools for recombinant DNA technologies are enzymes, restriction enzymes. They are known as molecular scissors. They can DNA at a specific location from a plasmid as well as from a foreign DNA in a such a way that they leave single stranded portion called sticky end both at the plasmid as well as the foreign DNA. They are obtained from bacteria. Second one is called enzymes. Ligase. When cut by the same restricted endonuclease, the resulting DNA fragment have the same kind of sticky end, and these can be joined together by using DNA ligase. Vehicle or vector DNA, passenger DNA, that is called host organ. These are the some tools. When we deeply going to that restricted enzyme, it belongs to a class of enzyme called nucleases. These are ये जो एंजाइम है ये न्यूक्लियेज ग्रुप के एंजाइम है बिकॉज इट कट द न्यूक्लिक एसिड. Exonucleases, these are the two types. One is called exonucleases, another is called endonucleases. Exonucleases are those which cut off nucleotide from 5 prime or 3 prime terminal end of DNA molecule. ये कहाँ पर कट करते हैं? एंड में कट करते हैं. सेकेंड ग्रुप के जो हैं दैट इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लियेजेज. दिस कट डीएनए एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल एंड. ये कहाँ पर करते हैं? जो एंडोन्यूक्लियेजेज हैं किसी भी पॉइंट में कट कर सकते हैं डीएनए के, कहाँ छोड़ के? टर्मिनल में. और जो पहला वाला था वो टर्मिनल एंड में कट करता है. H.O. Smith, K.W.Wikox and T.J.Kelley isolated and named the first restricted endonuclease from haemophilus influenza bacterium and called HIND. Hint second. It always cut the DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair called recognition sequence. जो नाम इसका है हिंट, ये किसके? जो restricted enzyme का nomenclature of restricted enzyme. The name of enzyme is derived from the name of the prokaryotic cell from which the enzyme is isolated. The first letter of the genus become the first letter of the name of the enzyme. It is written in a capital letter. The first 2 letter of the species make second and third letter of the name of the enzyme. They are written in the small letter. All these letter are written in italic. कैसे लिखे जाएंगे? Italic. The fourth letter of the enzyme is the first letter of its strain. It is written in capital. The Roman number written at the end of the name indicate the order in which the enzyme was isolated from prokaryotic cell. For example, E को R, that is a restricted एंजाइम. ये रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है, आइसोलेट किया था फ्रॉम एस्चेरेशिया कोलाई RY13 से. इट इज नेम, इसलिए इसको नेम क्या दे दिया? द कैपिटल लेटर ई किससे आया? जीनस नेम ऑफ एस्चेरेशिया. द लेटर को कम फ्रॉम कोलाई स्पीसीज नेम. द आर लेटर कम फ्रॉम द स्ट्रेन R13 एंड द रोमन नंबर 1 इंडिकेट इट वॉज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया इको RY13. इको RY से इस तरह से हम इस रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम को क्या करते हैं? नेम देते हैं. जब भी हम नेमिंग देते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज की, जो फर्स्ट लेटर
of the name come from the genus of the organism, they are isolated. जहां से वो isolate किया गया, यहां पर suppose if you are looking about that call hint, hind, hint, hint किसको बता रहा है? hemophilus influenza. पहला नेम जो है वो जेनेरिक है और सेकंड और थर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका that one. First name represent the Haemophilus genus and the second name is represent the influenza species. The second two letter of the name come from the species of the organism which they are isolated. The next letter refer to the name of strain. जो second है that is refer to the strain. ठीक है, ये किसका नाम हो गया? strain का नाम हो गया. The recognized sequence is a palindrome where the sequence of base pair read the same on both the DNA strand when the orientation of reading is kept the same. For example, that is called GAA TTC 5 prime 3 prime and 3 prime से C TTAAG means पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो हैं जो ये रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम हैं, इनके यूनिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं. पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो हैं पैलिंड्रोम वर्ड की तरह. मान लिया क्या होते हैं पैलिंड्रोम वर्ड? पैलिंड्रोम वर्ड वो होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन सेम होती है, चाहे आप इनवर्ट पढ़िए या बैकवर्ड पढ़िए. मान लिया सपोज आप कोई भी ऐसा पैलिंड्रोम सीक्वेंस बताइए जिसकी दोनों ओर से लेफ्ट और राइट से हम सेम पढ़ें. फॉर एग्जांपल मलयालम. ठीक है, अगर हम देखें पैलिंड्रोम सीक्वेंस को तो क्या होता है? जैसे MALAYAM मलयालम MAL. देखिए ओरिएंटेशन दोनों ओर से सेम है, यहां से भी M A LLA मीन ओरिएंटेशन आप यहां से भी पढ़ेंगे तो क्या आएगा? मलयालम. यहां से भी पढ़ेंगे मलयालम. तो इस तरह के वर्ड की जिनकी ओरिएंटेशन बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम हो उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम वर्ड. तो उसी तरह क्या होता है डीएनए के वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड के वो सीक्वेंस जिनकी ओरिएंटेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम अगर हम पढ़ें तो दोनों में ओरिएंटेशन क्या हो? न्यूक्लियोटाइड, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच हैविंग द सेम टाइप ऑफ बेस पेयर. सीक्वेंस क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. द पैलिंड्रोम इन ए डीएनए इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर दैट रीड द सेम on the two strand of DNA when orientation of reading is kept the same. orientation of reading का मतलब जैसे ये है GAATTC. यहाँ पर देखो 5 प्राइम से हम ओरिएंटेशन रख रहे हैं तो GAATTC और यहाँ भी देखिए 5 प्राइम से अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें, ये इसका 5 प्राइम GAATTC. इसका मतलब क्या है? GAATTC. रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेजेज की बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेजेज ये क्या करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है. जब पैलिंड्रोम सीक्वेंस की बात करते हैं हम, क्या है पैलिंड्रोम सीक्वेंस? फॉर एग्जांपल वी आर लुकिंग अबाउट द एग्जांपल GAATTC 6 न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है जिनकी ओरिएंटेशन अगर हम सेम प्राइम से रखें तो उनकी ओरिएंटेशन सेम होगी. डायरेक्शन मान लिया 5 प्राइम में, यहाँ पर क्या है? GAATTC. तो यहाँ भी 5 प्राइम से अगर हम इसकी दूसरी की पढ़ें तो वो क्या आएगी? GAATTC. तो जिनकी ओरिएंटेशन सेम हो उसको, उन सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है? ये इसके स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जिनको बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस. उस पैलिंड्रोम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको एक स्पेशल डायरेक्शन से कट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम ई को R1 की अगर बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम तो उसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है? GAATTC.
ठीक है, ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों। अब ये क्या करेगा, ये कट करता है अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे करेगा। कहां पर से कट करेगा, यहां पर, ये जो मैंने डायरेक्शन बता रखी, जी और ए के बीच में कट करेगा। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को। कौन सा रेस्ट्रिक्टेड है, ई को आर आई। ई को आर आई एक रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है जिसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है, GAATTC। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम कहां पर कट करेगा, यहां पर, दैट इज कॉल्ड कट साइट ऑफ ई को R1 restricted enzyme. How the restricted enzyme get work? Each restriction and endonuclease function by inspecting the length of a DNA sequence. Once it finds its specific recognized sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone. कहां पर कट करेगा, सुगर। एज ए रिजल्ट सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन कॉल्ड स्टिकी एंड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द डीएनए। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेज, द डीएनए फ्रेगमेंट yield the same kind of sticky end which can be joined end to end by DNA लाइगेज। अब क्या होता है, देखो यहां पर अभी हम बात कर रहे थे स्टिकी एंड की, ये किसके हैं, ई को आर आई। ई को आर आई मान लिया हम एक रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम यूज करते हैं, ई को आर आई, ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्टेड है। इस रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम को हम एंडोन्यूक्लियोजेज को यूज करते हैं कट के लिए न्यूक्लियोटाइड। तो ये किसको इंस्पेक्ट करेगा, अपनी पैलिंड्रोम सीक्वेंस। That is also called recognized site of EcoR1 restricted and 5 prime 3 prime। यहां भी सेम GAATTC, that is 3 prime, that is 5 prime। अब ये क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा इस पूरे डीएनए का जितना भी, और जहां पर इसको अपने पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिल गए, इसको ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिलेंगे तो ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद इसकी कट साइट है, किसकी, ई को आर आई रेस्ट्रिक्टेड, इसकी कट साइट कहाँ है, जी और ए न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दोनों में यहां पर ये क्या करेगा, कट कर देगा। जैसे ही कट करेगा तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और क्या मिल जाएंगे, स्टिकी एंड दोनों। क्योंकि जब भी हम होस्ट में, जिसके अंदर हमें इनको इनकॉर्पोरेट करना है इस डीएनए को, और वेक्टर या फॉरेन डीएनए जिससे हमें वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेने हैं, डीएनए का फ्रेगमेंट लेने हैं, जो डिजायर जीन हमारा लेना है, वो उसको हम फॉरेन ऑर्गेनिज्म से लें, तो उसमें, और जिसके अंदर हमें इसको लाइगेट करना है, दोनों के लिए हम सेम रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेज यूज करेंगे ताकि उनकी रिकॉग्नाइज साइट क्या हो, सेम हो, ताकि वो सेम रिकॉग्नाइज साइट में कट करें। और क्योंकि जब भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आपस में जुड़ेंगे, इट फॉलो द बेस पेयरिंग रूल। वो किसको फॉलो करते हैं, बेस पेयरिंग। अगर हम अलग अलग सीजर यूज करेंगे, मान लिया अलग अलग सीजर यूज करते हैं, इसमें अलग अलग रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेज यूज करेंगे, तो उनकी दोनों की कट साइट क्या होगी, अलग अलग, उनके रिकॉग्नाइज साइट क्या होंगे, अलग होंगे, तो वो अलग अलग जगह कट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि लाइगेशन नहीं हो पाएगा। लाइगेशन क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइगेशन के लिए जब भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो वो बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करेंगे। इसलिए हम जब भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर यूज करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पर सेम मॉलिक्यूलर सीजर यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेज यूज करते हैं दोनों में, जिसके अंदर हमें डालना है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, जिसके अंदर, और जहां से हमें लेना है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डीएनए। नाउ लुक अबाउट द एक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम या एंडोन्यूक्लियोजेज कैसे कट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइज। यहां पर हमने कौन सा रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेज यूज किया, ई को आर आई, क्या यूज किया, ई को आर आई रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेज यूज किया। कौन सा यूज किया, ई को आर आई। ई को आर आई को कहां पर यूज कर रहे हैं, एक तो हम वेक्टर के अंदर कर रहे हैं जिसके अंदर हमें इसको पहुंचाना है, दूसरा क्या है हमारा, जहां से हमें डिजायर जीन लेना है। डिजायर जीन कोई फॉरेन ऑर्गेनिज हो सकता है, फॉरेन जीन हो सकता है। अब ये फॉरेन डीएनए,
दोनों में हमने क्या यूज किया, सेम रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेज किया ताकि उनकी कट साइड सेम हो। उन्होंने कट किया, ई को आर आई जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है उसकी कट साइड क्या है, GAA-TTC, GAA-TTC, इसको याद रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जैसे कट करेगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये यहाँ पर कट किया तो डबल स्टैंड को इसने कट करके यहाँ पर इस तरह बना दिए, ये वेक्टर डीएनए जिसके अंदर हमें इसको इनकलकेट करना है, जिसके अंदर हमें जोड़ना है, और ये फॉरेन डीएनए जिसका पार्ट हमें जोड़ना है। इन दोनों के स्टिकी एंड बन गए। वो स्टिकी एंड बेस पेयरिंग रूल को भी फॉलो करेंगे क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो बेस पेयरिंग रूल, और कौन सा एंजाइम की मदद से, डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज की वजह से दोनों फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए का पार्ट है और ये जिसके अंदर हमें डालना है वेक्टर, इन दोनों के डीएनए को जोड़ दिया। अब दोनों के डीएनए को जोड़ के हमारे पास एक नई तरह का डीएनए का कॉम्बिनेशन आने गया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बिकॉज इस डीएनए में क्या है, इस दैट डीएनए इनकॉर्पोरेटेड विद द फॉरेन डीएनए, एलिन डीएनए जो था, एलिन ऑर्गेनिज का जो डीएनए था उससे वो इनकॉर्पोरेट कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेज। That is the step in formation of recombinant DNA by action of restricted endonucleases. मैं फिर रिवाइंड कर रहा हूँ क्विकली। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोजेज क्या है, न्यूक्लियोजेज ग्रुप के एंजाइम हैं जो डीएनए के एक पर्टिकुलर साइट में कट करते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे करते हैं। और इनका क्या होता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जिनका ओरिएंटेशन सेम रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ई कोलाई का हमने देखा, फिर क्या है, ये फॉरेन डीएनए जब हमारा मिला, इस फॉरेन डीएनए को हमने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ये होस्ट के अंदर। दैट इज द स्टेप। वही स्टेप को यहां भी बता रहा है किस तरह हमने किया, दैट इज फॉरेन डीएनए। अब इसको थोड़ा समझना है, यहां पर कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये स्टेप बार बार रिपीट किए। पहले इसमें बता रखा है कि प्रोसेस क्या क्या है, किन किन स्टेप से हम इसको अचीव करते हैं, और बाद में इसको एक्सप्लेन किया। देखो, जब भी हमें कोई डिजायर्ड जीन चाहिए होगा, पहले अगर हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज को डिजाइन करना है तो हम ये ढूंढेंगे कि किसके अंदर वो जीन हमें मिल सकता है, ठीक है। यहां तक समझिएगा आप, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, स्टिकी एंड फॉर्मेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और लाइगेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं।